Hello everyone. Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. Today I am discussing most important expected MCQs on Protection of Human Rights Act with Amendment 2019 जो रिसेंट में अमेंडमेंट हुई है 2019 उस पे भी मैंने MCQs तैयार किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, तो प्लीज़ एंड तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। The NHRC is the National Human Rights Commission of India responsible for नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन और प्रमोशन ह्यूमन राइट्स का करने के लिए। डिफाइंड बाय द एक्ट एज राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड dignity, rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी दिए फंडामेंटल राइट्स की, और एम्बडीड इन द इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई एम रिपीट अगेन, इम्पोर्टेंट है। द प्रोटेक्शन एंड promotion of human right defined by the act as rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. Next, who can appoint chairperson and members of NHRC? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? सेक्शन 2, 3 and 4 of TPHRA means the Protection of Human Rights Act lay down the rules for appointment of NHRC. The chairperson and members of the NHRC are appointed by the President of India on the recommendation of committee consisting of the Prime Minister, Home Minister। तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये याद रखना है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेकिन किसके रिकमेंडेशन ऑफ? द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, उस कमिटी में कौन कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन होता है इसमें, इस कमेटी में। होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा लोअर हाउस, द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा अपर हाउस, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा लोअर हाउस, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा अपर हाउस। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और एक बात रिपीट करती हूँ आपके लिए, हु कैन अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन और मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? तो सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड 4 ऑफ TPHRA मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट lay down the rules for appointment of the NHRC. The chairperson and members of the NHRC are appointed by the President of India on the recommendation of committee consisting of the Prime Minister, the Home Minister, the leader of the opposition in Lok Sabha, the leader of opposition in Rajya Sabha, the speaker of the Lok Sabha, the deputy chairman of the Rajya Sabha. Next, what are functions of NHRC? एक कभी कभी MCQs में ऐसे पूछे जाते, कौन से भी 4 दिए जाते हैं, 3 दिए जाते हैं, एक अलग दिया जाता है। इसके मैंने पूरे ही एक ही साथ लिए हैं जो आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए। The Protection of Human Rights Act mandates the NHRC to perform the following: proactively or reactively inquire into violations
of human rights by government of India or negligence of such violation by a public servant. The first है the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation. Protection of human rights and measures for their effective implementation. अगर ये फर्स्ट है, अगर निग्लिजेंस होता है वायलेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट से, तो रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures. To study treaties, other international instruments on human rights and make recommendation for effective implementation. Study of treaties and international instrument की study on human rights and make recommendation करना उस पर for their effective implementation के लिए. फंक्शंस और है, फंक्शन एक ही साथ लिए है मैंने, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए. ने ये फंक्शन सी है ये NHRC के. अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स. promote research in field of human right, to visit jails and study the condition of inmates. विजिट करना है जेल की और कंडीशन स्टडी करनी है, जेल्स की कंडीशन क्या है. एंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमोंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफगार्ड्स अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट थ्रू पब्लिकेशन, द मीडिया, सेमिनार्स एंड अदर अवेलेबल मीन्स. Encourage the efforts of NGOs, institution, Congress to working in the field of human rights. Efforts encourage the efforts of the NGO. It considers the necessity of for the protection of human rights. नेसेसिटी क्या है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए. रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ और ऑफिस. ये सब क्या है NHRC के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के फंक्शंस है. मैंने एक ही साथ लिए है, कोई भी पूछा जाए तो आपको याद आ जाए इसलिए. नेक्स्ट, हु अपॉइंट चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी. कमिटी में कौन कौन रहता है, कंसिस्टिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर इज एज इट्स हेड. चेयरपर्सन रहता है चीफ मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्टेट होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली. ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. हु अपॉइंट चेयरमैन राइट कमीशन, कौन अपॉइंट करता है, तो एक बार रिपीट कर रहे. गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स, किसके रिकमेंडेशन पे करते हैं, लेकिन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन रहता है कमिटी में. चीफ मिनिस्टर एज इट्स हेड, द स्पीकर, द लेजिस्लेटिव असेंबली, द स्टेट होम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. What do you mean by the term human rights? Human rights means क्या है. The answer in terms of section 2 में डिफाइन किया गया है. ह्यूमन राइट्स से कभी कभी पूछा जाता है, सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है. In terms of section 2 of the Protection of Human Rights Act 1993, human rights means क्या है. human rights mean the rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual, guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India. That is mean by
ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 में, ये याद रखना हो। ह्यूमन राइट्स मीन्स क्या है? द राइट्स रिलेटिंग टू, ये भी याद रखना है, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड डिग्निटी। ये भी कभी कभी सीक्वेंस में पूछा जाता है, तो ये भी सीक्वेंस याद रखना है। पहले लाइफ आता है, फिर लिबर्टी, फिर इक्वेलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, गारंटीड बाय द, गारंटी किसने दी है? गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बेडेड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट इज नेशनल ह्यूमन कमीशन? सेक्शन 3 में किया गया है। नेशनल ह्यूमन कमीशन ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी नोन एज National Human Rights Commission to exercise power conferred upon the assigned to it under the said act. The National Rights Commission of India is autonomous public body। एक ऐसी बॉडी है NHRC, आपके नॉलेज के लिए ये ले रही हूँ मैं, फिर इस पे MCQs आएंगे। तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसी बॉडी है? तो ये बॉडी है एटोनॉमस पब्लिक बॉडी। कॉन्स्टिट्यूट कब हुई है कॉन्स्टिट्यूट? तो 12 अक्टूबर 1993 को एस्टेब्लिश हुई अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस ऑफ 28 सितंबर 1993। इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी बेसिस, इट इज also statutory body basis by the protection of human rights act, the protection of human rights act। द NHRC इज नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल, मैंने अभी लिया था, रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोटेक्शन एंड promotion of the human right defined by the act as rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenant। Next, what powers have been vested with the commission relating to inquiries? कौन से पावर दिए गए हैं कमीशन को, NHRC और SHRC को? While inquiring into complaint under act, the commission shall have the powers of civil court। तो NHRC को और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कौन से पावर्स है? तो पावर्स ऑफ सिविल राइट, सिविल कोड के पावर दिए गए हैं। ट्राइंग अ सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड इन द पर्टिकुलर ऑफ द फॉलोइंग नेमली। तो कौन से पावर्स है? समोनिंग and enforcing the attendance of witness and examining them on oath, discovery, the production of any document, receiving evidence on affidavits, requisitioning any public record or copy thereof from any court or office, issuing commission for the examination of witnesses or documents if other matters which may be prescribed। ये भी याद रखना है। Who introduced the protection of bill, ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल? जो अमेंडमेंट हुई है 2019 में, वो इंट्रोड्यूस इन लोकसभा किसने किया गया है? तो बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह ऑन 8 जुलाई 2019। तो हु इंट्रोड्यूस बिल इन ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट 2009? तो बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह ऑन 8 जुलाई 2019। हु इज चेयरपर्सन ऑफ NHRC? कौन हो सकता है NHRC का चेयरमैन? अंडर एक्ट ये अमेंडमेंट हुआ है, मैंने इसलिए लिया है अभी ये कि आपको इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिल सके। अंडर द एक्ट 2019 द चेयरपर्सन ऑफ NHRC इज पर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन हो सकता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द बिल अमेंड, ये पहले था लेकिन अमेंड करके अब क्या हुआ? अमेंड दिस टू प्रूव दैट, provide that a person who has been chief justice of the supreme court or a judge of the supreme court, पहले कहा क्या था? ओनली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही चेयरपर्सन बन सकता था NHRC का। लेकिन अब बिल में अमेंडमेंट किया गया है 2019 में,
आप कौन बन सकता है, तो अ पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस भी बन सकता है अब, और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी। तो ये याद रखना है अमेंडमेंट से क्या बदल हुआ है। तो चीफ क्या चेंज हुआ है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी। पहले ओनली चीफ जस्टिस हो सकता था चेयरपर्सन, लेकिन अब क्या अमेंडमेंट से चेंजेस हुए हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी चेयरपर्सन ऑफ द एनएचआरसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। हु इज मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी, मेंबर्स कौन हो सकते हैं, मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 2 persons हैविंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट्स टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी। ये पहले था, लेकिन अब अमेंडमेंट से क्या हुआ है, ये अमेंडमेंट से क्या हुआ है, द बिल अमेंड दिस इज टू अलाउ 3 members टू बी अपॉइंटेड। पहले 2 members थे, कंफ्यूज नहीं होना है, पहले के भी ऑप्शंस आएंगे एमसीक्यूज में और अभी के भी आएंगे। तो पहले कितने मेंबर्स थे, 2 members थे। तो अब ये इस अमेंडमेंट बिल से क्या हुआ है, तो दिस टू अलाउ 3 members टू बी अपॉइंटेड ऑफ विच एटलीस्ट 1 विल बी अ वुमन। उसमें 3 मेंबर्स में 1 विल बी अ वुमन, एटलीस्ट 1 वुमन 3 मेंबर्स में से 1 होनी चाहिए। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी अमेंडमेंट से हुआ है। तो अब कितने मेंबर्स है, 3 members टू बी अपॉइंटेड ऑफ विच एटलीस्ट 1 विल बी अ वुमन, ये याद रखना है। नेक्स्ट, the act provides for 2 persons having knowledge of human rights to be appointed as member. The bill amends, अभी देखा है मैं हमने, bill amends to be appointed of which at least 1 will be a woman. Under the act, chairperson of various commission, सभी चेयरपर्सन वेरियस कमीशन के सच एज कौन कौन से, उसमें 3 मेंबर्स रहेंगे, सच एज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमन आर मेंबर्स ऑफ द एनएचआरसी। द बिल प्रोवाइड्स फॉर इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड द चीफ कमिश्नर for the persons with disabilities as the members of NHRC। इन सभी में 3 members होंगे, 1 एटलीस्ट 1 वुमन होगी। ओके, नेक्स्ट, हु इज चेयरपर्सन ऑफ SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन हो सकता है चेयरपर्सन, अंडर द एक्ट चेयरपर्सन, under the act chairperson of SHRC is a person who has been chief justice of high court। ये पहले था, लेकिन बिल से अमेंडमेंट क्या, ये मैं इसलिए ले रही हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पहले क्या था और अमेंडमेंट से क्या बदल आया, चेंजेस आई, ये आपको समझ में आया है, इसलिए मैंने ये लिया। The bill amend this to provide that person who has been chief justice और judge of high court। पहले क्या था, ओनली चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का भी वैसा ही, एनएचआरसी में भी पहले क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जज भी चेयरपर्सन बन सकता है और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन सकता है। वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी क्या होगा, अमेंड दिस टू प्रोवाइड दैट अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस और जज ऑफ द हाई कोर्ट विल बी चेयरपर्सन ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये याद रखना है। हाउ मेनी ईयर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ NHRC एंड SHRC होल्ड ऑफिस, होल्ड ऑफिस कितने ईयर्स तक रख सकते हैं, पहले कितना था, ये 5 years टिल द एज ऑफ 70 years, ये पहले था। अब अमेंडमेंट से क्या हुआ है, द बिल रिड्यूस, ये बिल 5 years जो है वो टेन्यूअर कम किया गया है, अब वो 3 years किया गया है, और टिल द एज ऑफ 70 years,
पहले भी 70 ईयर्स था, अब भी 70 ईयर्स है, लेकिन टेन्योर कम किया गया है। पहले 5 ईयर्स था, अब कितने हुआ है 3 ईयर्स, और टिल द एज ऑफ 70 ईयर विच एवर इज अर्लियर फर्दर द एक्ट अलाउज फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द NHRC and SHRC for a period of 5 years. The bill removes 5 years limit. 5 years limit रिमूव की गई है। अब ये याद रखना है 3 ईयर्स प्लस टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। चेंज क्या हुआ है ओनली, पहले 5 ईयर्स का 10 ईयर था, अब 3 ईयर्स का है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वॉट इज पावर्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल के पावर क्या है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ NHRC एंड सेक्रेटरी ऑफ SHRC हु NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड SHRC State Human Rights Commission who exercise powers as may be delegated to them. The bill amend this and allowed the Secretary General and Secretary to exercise all administrative power. भी amend किया गया है, इसमें भी 2019 के amendment में the bill amend this and allowed the Secretary General and Secretary to exercise all administrative and financial power. कौन कौन से पावर दिए गए हैं, all administrative and financial power except judicial function, ये भी याद रखना है, except judicial function subject to the respective chairperson control. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शन। पावर्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1993, ये करेक्ट है। इन केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशन द कमीशन हैज नो राइट टू पनिश द कल्प्रिट, ये भी करेक्ट है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन अमाउंट अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये नहीं है। तो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट विथ रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वो कमिटी रहती है, उनमें अभी बताया था मैंने। द कमीशन सेंड्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ऑप्शन सी इज रॉन्ग है, बाकी सब करेक्ट है। Who of the following is not included in the committee constituted for the appointment of chairman and National Human Rights Commission? तो कमिटी के चेयरपर्सन who of the following is not included in the committee? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तभी याद हमें आएगा कि क्या कंफ्यूजन है इसमें। The who of the following is not included in the committee constituted for the appointment of the chairman of the National Human Rights Commission? प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ द मेन ऑपोजिशन पार्टी। प्रेसिडेंट कमिटी में नहीं रहता, इनके रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट क्या करता है, अपॉइंट करता है। ये कंफ्यूजन याद रखना है, प्रेसिडेंट कमिटी में नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का फंक्शन क्या नहीं है। तो अभी मैंने सभी फंक्शंस लिए थे आपसे, ना ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, टू इंटरफियर इन द प्रोसीडिंग रिलेटेड टू एनी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन केस पेंडिंग इन द कोर्ट, ये भी है। प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स प्रिजनर्स, ये भी है। टू प्रोवाइड इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन टू एनी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन विक्टिम, ये नहीं है। सी, प्रोमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, अभी लिए थे मैंने सभी फंक्शन, तो ये तीनों फंक्शन है। तो ये टू प्रोवाइड इकोनॉमिक कॉम्पनसेशन टू एनी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन विक्टिम, ये नहीं है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। फर्स्ट ए ऑप्शन है इसका। National Human Rights Commission is a statutory body, constitutional body, multilateral
इंस्टीट्यूशन बोथ ए एंड सी। आंसर क्या है? तो इसका कैसी बॉडी है? मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है। तो बोथ ए एंड सी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share and subscribe to my channel.